is India's biggest opportunity and greatest challenge. What are political leaders doing to address the concerns of our first-time voters? I want to begin this session by inviting upon stage Congress Member of Parliament from Rohtak in Haryana, Deepinder Singh Hooda. Coming up next, the Congress's principal challenger, the BJP's representative on our session this afternoon, member of the National Executive of the BJP, Sanjay Kaul. And our last guest, a man who wants to throw both these parties out. He's the challenger. The convener of the Aam Aadmi Party. I want to introduce Arvind Kejriwal. Before I call our speakers upon the stage, I want to quickly take you through some of the major findings of the India Today Youth Survey. This is a survey conducted among people between the age of 18 and 22, and it gives a sense of what thousands like you feel at this time about the political situation in our country. So if you just look up to the screens, 90% of those who were polled by C Voter for India Today say they will go out and cast their mandate. That means most of you feel very engaged, you want to know whom to vote for, and you say you will cast your mandate. Amongst those, and boys I feel are always more cocky and confident than women, 73% of the boys feel their vote will make the difference in the next election. So confident are they about the importance of their vote, whereas amongst the women, it's only 58. This is where things stand at this time amongst young Indians. Which party will you vote for? This was the question posed by the pollsters. 34% said the BJP, 26% said the UPA, 26% at this time are undecided. That is where the election will be fought, lost or won. Then on this big question, I'm sure it's going to feature on our show and our session this afternoon as well, on the issue of whether people feel Narendra Modi is a better option or Rahul Gandhi. That's the big question. And at this time, 47% say Modi is better. The only category where Rahul actually does better than Modi is amongst young girls. Because amongst young girls, Rahul is slightly, just slightly ahead of Modi. Maybe it's the smile, the dimples, I don't know what quite, but that's the only category where he's leading, but Modi is at 39.3. This is what I am most concerned about. When young Indians were asked what is the sort of prime minister they want, 86% said they want an authoritarian and decisive prime minister. Now, decisive is good. Authoritarian, Hitler was authoritarian, Napoleon was authoritarian. Is that what young India wants? Well, the response seems to indicate that they want an authoritarian prime minister. So, I want to begin by calling upon the stage Deepinder Hooda. This is a government, Deepinder, that has been accused of killing the India growth story, that has been accused of a multitude of scams. So please explain to this young audience here why young India should have faith in Rahul Gandhi, in the Congress party, and vote for you. And I must tell my panelists before they start speaking that at the end of this session, we will do a show of hands and ask our audience whose message were they most convinced by. Deepinder Hooda, Sanjay Kaul or Arvind Kejriwal. So you need to keep thinking about whose message will you be most convinced by and whom you like to vote. Ladies and gentlemen, let's hear it for the young Deepinder Hooda. Thank you, Rahul. And thank you for inviting me to this debate. First-time voters, critical elections. That's the name of the discussion that we're going to have just now. And you have given an interesting start by informing us of the survey that you conducted, in which more than 80% of younger Indians
feel as if they need an authoritarian Prime Minister. So let me begin straight away by trying to, I think, the only way to discuss the young voters, the first-time voters, the need for them to participate in our democracy, is to address their concerns and the cynicism that's visible in your survey. This cynicism, by the way, it is not just restricted to India. We see it across the globe. We see it in Arab Spring. We see it in Occupy Wall Street movement. We see it across the globe. Younger generation coming out on the streets, demanding their systems to deliver more. We see it in India as well. While some may term this cynicism as unfortunate, in our case, since we are a democracy already, it's not surprising when you see members of parliament shouting at each other, when you see parliament getting disrupted time and again, the fractious nature of our polity and democracy, the chaotic environment as presented by the media, the painful process of passing legislations and building consensus. When we see, I've seen this closely for the last 8 years, sitting in the parliament on the front, right next to where it happens. And it's not surprising to me that there is a sense of cynicism, whether our system will be able to deliver for us or not. To answer this, let me begin by trying to answer another question which I have been asked time and again in these last 8 years. The question, what has our democracy done for ourselves in the last 66 years? क्या हुआ? क्या हम कहां तक पहुंचे? हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बात करेंगे, आप हिंदी में बोल रहे हैं. हम कहां तक पहुंचे? क्या हुआ? इन 66 साल के अंदर प्रजातंत्र ने हमें क्या दिया? सही है, ये सवाल सही है. हम बहुत कुछ कर सकते थे और भी बहुत कुछ करना बाकी, मगर हमने बहुत कुछ किया है, ये हमें समझना भी जरूरी है. जब हमारा देश आजाद हुआ 40 के दशक में, at the end of World War II, which saw collapse of Imperial Britain and Nazi Germany, lot of nations across the world found their independence and voice in the League of Nations at about the same time. From Egypt to Iraq to Syria to Pakistan to Afghanistan. Syria in 1946, why they have not been able to adopt democracy, why their young are still fighting for the power of vote. To Egypt, where we saw the rise of Arab Spring and we saw the fall of Arab Spring as well. The Arab Spring and Arab fall, I'd like to call that. Where are we? Let's start by comparing ourselves with multitude of nations that started at the same point as us. Have we come forward in these 66 years? I think we have. We were the only nation amongst all these. We're the only nation that was able to adopt, formulate a constitution based on power of vote, and that is what we are all here to discuss about. Within 3 years, in 1950, to hold its elections, first general elections in 1952, and we have never looked back. In these years, in 66 years, we started, the average Indian in 1947 had a per capita income of 230 rupees, one of the lowest amongst the fraternity of nations. Today, 68,000 per capita. The average Indian in 1947 lived about 32 years. The average life expectancy was 32 years in 1947. Today, it is 66 years. The odds are, I'm a 34-year-old, and it's quite painful when I sometimes see in the morning and see a couple of hair going grey these days. It's not a happy thing to see. But the odds are that I'm speaking to you today is because we have moved forward. In 1947, our average life expectancy was less than my age. Literacy, from 12%, we have moved on to 75%. Deependra, you have 1 more minute to conclude. Rahul, I'm just getting warmed up.
We want everyone to get No, but equal chance to get forward. I'll try to make it a little short. We have achieved unification of a nation as diverse as India. Why has no other nation been able to achieve that? Driven by ideals of Panditji and Sardar Patel. And we have defeated the forces in this history, the forces that wanted to break our nation based on religion, caste, region, etc. We have deepened the roots of our democracy, Panchayati Raj revolution, universal franchise, something that we've been able to achieve, that America took 250 years to achieve. We achieved that. For a complex and diverse nation that like India, universal franchise, lowering of voting age. I think in a way, today's debate is a tribute to Rajiv Ji, who had the vision and audacity to lower the voter age from 21 to 18 years, 18 years of age, 18 years as we have it today. We have deepened our growth story for advancing human prosperity, some of the things that I talked about. Green revolution, we've achieved revolution without having an actual revolution. Green revolution, white revolution. In 1947, 50 million ton was the food grain production. We have increased that by 5 times in the same land mass and with the same water. No other nation has been able to achieve that. We did that. We have done this, but at the same time it's a legitimate question. Can we do more? We should do more. Even in the last 9 years, and I'll conclude in next 1 minute, even in the last 9 years, that sometimes we get critical about, we have achieved the fastest rate of economic growth in our history, and second fastest rate of economic growth for 9 years in human history achieved by any other nation. 7.9%. Our size of our economy has tripled from 600 billion to 2 trillion. But something that I'm more proud about in the 9 years, we have achieved a feat which I am most proud of. Human history, not just our history, has seen the steepest decline in poverty in the last 7 years. The might of China and their economic model was not able to deliver 14 crore people as we have achieved out of poverty in the last 7 years. We have been able to achieve that. Yet there is so much more we can do. There are a lot of challenges. That's why we are having this debate. Political challenges, economic challenges. We need to generate a lot of growth to provide job opportunities to the young. We need to choose between competing economic theories of growth, of one with growth and one with growth that thinks about inclusion, so that everybody is together. At the political level, on the political side, we have challenges. There are still forces trying to divide our country, divide our nation on the basis of caste, on the basis of communal lines. There are still ideologies which want to build political capital on basis of divisions amongst us. We need to defeat those forces. There is another thing. There's one last thing that I'll touch upon. Another thing that we need to, I think, fight. Divisive nature of our politics, fueled by our vibrant media. क्या अर्थ है डिवाइसिव नेचर ऑफ हमारी पॉलिटिक्स का? हमारी विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, मगर आज हमारे देश में मैं देखता हूं कि राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं वो आपस में इतनी, जो डिबेट है, डिस्कोर्स है, वो इतना कोल्ड हो गया है, इतना आपस में हम प्रतिद्वंदी हो सकते हैं मगर दुश्मन नहीं। आज अरविंद केजरीवाल जी बैठे, ये मेरे प्रतिद्वंदी हो सकते हैं राजनीतिक विचारधारा की दृष्टि से, मगर दुश्मन नहीं हो सकते। मैं इनके फैसले का सम्मान करता हूं कि ये राजनीतिक प्रक्रिया के अंदर आए हैं, इस बात का मैं सम्मान कर सकता हूं। मेरी विचारधारा इनसे अलग हो सकती है। मैं समझता हूं कि हमें इस बात का हम सबको सम्मान करना चाहिए कि हम सबका लक्ष्य एक है, रास्ता अलग हो सकता है। हम सब एक महान देश का निर्माण करना चाहते हैं, हम सब अपने देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, मगर रास्ते अलग हो सकते हैं। मैं जो रास्ता बताऊं हो सकता है वो अलग रास्ता बताएं, और मैं इस बात का सम्मान करता हूं। बीजेपी हो सकता है अलग रास्ता बताए, मैं उस बात का भी सम्मान करता हूं, मगर मुझे इनकी नीयत पे शक नहीं। मुझे इनकी नीयत ये भी हमारे देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, महान देश का निर्माण करना चाहते हैं, और आपस में प्रतिस्पर्धा में हमें आपस में प्रतिद्वंदी हैं
मगर हमें एक दूसरे को दुश्मन नहीं मानना चाहिए। हम एक ही टीम के मेंबर हैं और तभी हम देश को आगे लेके जाएंगे, तभी हम युवा पीढ़ी में एक विश्वास उत्पन्न कर पाएंगे। मैं केजरीवाल जी को राजनीतिक शुभकामनाएं नहीं दे सकता, मैं दूसरी पार्टी से हूं, मगर उनको निजी तौर पे मैं बधाई दे सकता हूं। उन्होंने फैसला किया कि वो चुनाव के रण क्षेत्र में आएंगे, अपनी बात कहेंगे और लोग फैसला करेंगे। मैं आप लोगों से आखिर में कंक्लूड करते समय यही कहना चाहता हूं, हम बहुत लंबा सफर तय करके आए, बहुत लंबा सफर हमें तय करना है। देयर आर लॉट ऑफ अचीवमेंट्स एज वी सी इन इजिप्ट, इन कैरो, young people taking to streets to get the power of vote. We are talking about the first time voters today. As we see decades of economic achievements of some of the Arab nations getting wiped out within days of churning of young, we realize that we have done something in India that no other nation was able to do. In a nation which is more complex and diverse than all those nations put together. All those nations put together. Be it Syria, if you put from Afghanistan, Pakistan, Syria, Egypt, you put all those nations together that are witnessing the churn. For want of democracy, we have been able to achieve that, but yet there's so much more to achieve. And to all of you, my friends, I'll just say, believe in yourself. You all you'll have a bright future. Just believe in yourself and go out and choose the best ideology. Thank you. This is the second time this has happened at Mind Rocks. Last time we had Sandeep Dixit from the Congress. He also came and praised Kejriwal. We've seen Deependra do the same. The BJP is supposed to be a genuine right-of-centre alternative to the Congress party. However, on every issue, whether it's the food security bill, the land acquisition bill, the BJP does the same thing as the Congress. So how is it that you're not the second side of the same coin? Why is it that this young audience, these young people should trust the BJP and vote for you or vote for Narendra Modi? Sanjay Kaul, why don't you explain that? And I request you to keep the duration under control so everybody gets an equal chance. All right, so the die is heavily loaded against me. I just wanted to say, when I was your age, we all thought politics sucks. I think we still do. So my point is that before I come to what Rahul posed, what Deependra was saying, I don't think I'm supposed to react to what he said, but some of them were sort of fundamental issues. And they talked about all of us moving in. Sorry? Oh, all right, okay. पहले बताया होता तो मैं हिंदी में बोल देता। तो दीपेंद्र साहब ने आके इतनी सारी बातें करी, इतनी चर्चा करी, उसमें कुछ ऐसे उन्होंने अहम मुद्दे उठाए, हालांकि उन्होंने इतनी तारीफ करी है, मुझे बुरा लग रहा है कि उनके बारे में या उनकी पार्टी के बारे में खिलाफ कुछ बोल। ये एक तरीका होता है, इतना मिठास डालो कि आदमी रिएक्ट ही ना कर पाए। अब फंसा दिया उन्होंने, लेकिन भाई हम अपना काम करने आए हैं। आदमी तो अच्छे हैं, पार्टी के बारे में ऐसा नहीं बोल पा रहे हैं। वो कहते हैं हमें इनकी नीयत पे शक नहीं है, हम सब एक साथ हैं। अगर हम सब एक साथ हैं तो पार्लियामेंट में झगड़ा किस बात का है? अगर हम एक साथ हैं तो आप हमें हर रोज कम्युनल क्यों बताते हैं? और कम्युनल की परिभाषा पे भी आप और हम मिलते नहीं हैं। अगर हम सब साथ हैं और हमारी नीयत एक जैसी है और ठीक है, तो वो होता क्यों नहीं जो होना चाहिए? पढ़ाई का एक मामला है जिसपे कोई भी सांसद हो, पार्षद हो, खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मैं सहमत नहीं हूं कि सबको पढ़ाई, एजुकेशन राइट होना चाहिए। लेकिन 65 साल बाद भी आपकी स्थिति यह है कि सबको पढ़ाई का हक नहीं मिलता है। यह क्यों हुआ? जिस बात पे कोई विवाद ही नहीं है, जिस पे कोई डिसएग्रीमेंट हो ही नहीं सकता है, वो भी तो नहीं हुआ। तो हुडा साहब, यह काफी नहीं है कि आपकी नीयत ठीक है, आपके इशारे ठीक हैं। यह जरूरी है कि आपका मॉडल सही है। यह जरूरी है कि आप जानते हैं आपको करना क्या है।
ये जरूरी है कि आप डिसाइसिव हैं, ये जरूरी है कि आप निर्णय ले सकते हैं। आज हमारे देश के बारे में कम से कम एक बात तो सारी दुनिया जानती है कि यहां की लीडरशिप डिसीजन नहीं ले सकती। जो बातें तय हैं उन पे अमल नहीं कर पाती, जो अमल करती है वो काम पूरे नहीं होते, जो पूरे होते हैं उसमें ठगी होती है। देश की दशा ये है, पहले तो पैसा मिलता नहीं, मिलता है तो रहता नहीं। पहले तो नौकरी मिलती नहीं, मिलती है तो रहती नहीं। पढ़ाई का यह हाल है कि यूनिवर्सिटी बनना तो दूर, जो है उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। हर रोज अखबार में देखने को मिलता है कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज का ग्रेजुएट है, इसको 1.25-1.5 करोड़ की नौकरी मिल गई। वो एक को मिलती है, 1 करोड़ इंतजार करते हैं। ये 1 करोड़ होता क्या है? ये आता कहां से है? क्या ये सिर्फ कांग्रेस में जाता है? क्या और किसी को नहीं मिल पाता है? मैं भी तुम्हारी तरह हूं, मैं भी मजबूर हूं, और मैं भी बीजेपी में केवल 4.5-5 साल पहले आया, क्योंकि मैंने भी तय किया यार हम भी तो जाने मामला क्या है। ये कुछ होता क्यों नहीं? सभी कहते हैं सही है, मगर सही कभी होता क्यों नहीं? सब कहते हैं दिल्ली बदतर होती जा रही है, आंखों के सामने खराब हो रही है, रहने को जगह नहीं है, मकान नहीं मिलता, लोगों को गुड़गांव, नोएडा, पता नहीं कहां जाना पड़ता है। ये होता क्यों है? वो इसलिए होता है कि सच्चा आम और असली आम तो आम आदमी को मिलता नहीं है। अब उसी फ्रस्ट्रेशन का इलाज ये है कि हम, मेरे मित्र केजरीवाल जी, अब उन्होंने कहा सारे आम ये खाते हैं, आम आदमी पार्टी हम बनाएंगे। इनकी मंशा ठीक है, और अभी बड़े प्रेम से उन्होंने मेरे हाथ में हाथ रख के बोला यार तुम आ जाओ। तो मैंने कहा यार मैं आ जाता, अगर मुझे रत्ती भर भरोसा होता कि तुम निकाल पाओगे मैं आ जाता, लेकिन तुम नहीं निकाल पाओगे यार, ये पॉलिटिक्स है, ये मामला ऐसा है। और अब तुम देखो सबके सब मेरी, जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैं भी कहता यार रेवोल्यूशन इज द ओनली थिंग, बाकी सब बकवास। इमोशन क्या होता है? लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था रेवोल्यूशनरीज मेक ग्रेट लवर्स बट दे मेक लाउजी हस्बैंड्स। मतलब आशिकी करने के लिए ठीक है, लेकिन शादी वादी करके बसने के लिए ठीक नहीं होते, और ये सच है। इसलिए मैं बीच का रास्ता अपनाता हूं। मैंने अपनी सारी सोच और गुस्सा अपने अंदर बांध के मैंने सहारा लिया तो एक ऐसी पार्टी का जहां पर कम से कम मैं अपना वजूद वहीं रख सकता हूं। या तो अपने आप पे भरोसा नहीं है कि मैं कैसी ऐसी बड़ी पार्टी में चला जाऊंगा। कोई पार्टी, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने करप्शन से डील करती है, उसमें अच्छे लोग होते हैं, बेकार के लोग होते हैं, वो परिवार की तरह चलते हैं। कोई अच्छा मामा होता है, कोई अच्छा चाचा होता है, कोई खड़ूस चाची होती है, चलता है। लेकिन उस परिवार का सहारा बहुत आवश्यक होता है, आप अकेले नहीं चल पाते। कोई है यहां पर जिसने इंडस्ट्री सेटअप की हो और बोले कि मैंने अकेले कर ली। कोई है यहां पर जिसने कहा हो कि मैंने ये काम कर लिया और मैंने अकेले कर लिया। होता नहीं है, चलता नहीं है। सिस्टम बहुत बड़ी चीज होती है, वो गहराई तक जाता है, उसकी नसें नीचे तक जाती हैं, आप पहुंच नहीं पाओगे। 50 साल की पार्टी है, 100 साल पुरानी पार्टी है, वो जहां पहुंच चुके हैं वहां आपको पहुंचने में कम से कम 10-15 साल लगेंगे। और पार्टी मुद्दों पर नहीं बनती, आइडियोलॉजीज पे बनती है, फंडामेंटल्स पे बनती है। मुद्दा आता है चला जाता है, आज है कल नहीं होगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं भी आप ही की तरह गुस्साया हुआ एक नौजवान था, और आज मैं शायद नौजवान ना हूं लेकिन उतना ही गुस्साया हुआ हूं। लेकिन मैं उस गुस्से को परिवर्तित कर रहा हूं, सहारा ले एक बड़े ढांचे का, जिसके अंदर मैं अपने आप को इतनी कॉन्फिडेंस से अकेले रहकर, साफ सुथरा रहकर और बदलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे सक्सेस रेट हायर है, मैं सिर्फ इतना आपसे कह रहा हूं। और यह आवश्यक है कि आप प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल होकर चलें।
नारा देना आसान होता है, उसे अमल करना मुश्किल होता है। मांगना आसान होता है, उसको प्राप्त करना मुश्किल होता है, और प्राप्त करने के बाद उसे मैनेज करना और भी मुश्किल होता है। हल्की फुल्की बातों में मेरा मन नहीं लगता है। जब सब कुछ हो जाएगा, जब शाम ढल जाएगी और जब रात आएगी, फिर आप जानेंगे जो मैं कह रहा हूं वो सही है। आपको चाहिए एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़कर काम करना जो कि एक डिसाइसिव लीडरशिप प्रदान कर सके। नरेंद्र मोदी जैसा कोई लीडर हो, उसके पीछे कोई चलने वाले हो, और जो कम से कम अपनी बातों पे खरे उतरे, जो कहें सो करें। अगर हारे, अगर ना हो तो कम से कम इतनी तो रखें कि कह सकें ये नहीं हुआ, आगे कर लेंगे। ऑनेस्टी तो हो, इंटेग्रिटी तो हो। धन्यवाद। थैंक यू संजय। वही मैं सोच रहा था कि जब दीपेंद्र बोल रहे थे, अरविंद और संजय कुछ खुसफुसा रहे थे। ये मैच फिक्सिंग का सिलसिला चल रहा था आम आदमी पार्टी के साथ। हाँ? अभी अरविंद केजरीवाल ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की है, नारे तो बहुत लगाए हैं, लेकिन उन नारों को हकीकत में बदलने का मादा क्या वो रखते हैं? क्या विजन है कि जो यंग ऑडियंस यहाँ बैठी है आपके विजन में बिलीव करते हुए आम आदमी पार्टी को वोट दे? लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स हियर इट फॉर आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। साथियों, अन्ना हजारे की विजय। बिल्कुल। सबसे पहले अभी दीपेंद्र हुड्डा जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की, उनकी पार्टी की नीयत तो साफ है। हम खुश हैं कि हमारे ओपोनेंट्स भी हमारी नीयत पे शक नहीं करते। लेकिन उन्होंने कहा हमारी विचारधारा अलग है। मैं बिल्कुल सहमत हूं, हमारी विचारधारा अलग है। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस की विचारधारा सरदार पटेल तय करते थे। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस की विचारधारा लाल बहादुर शास्त्री तय करते थे, और आज कांग्रेस की विचारधारा रॉबर्ट वाड्रा तय करते हैं। इसलिए अन्ना हजारे को आंदोलन करना पड़ा था, इसलिए हम लोगों को आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी थी। यहां पे विचारधारा का फर्क है कि कांग्रेस की विचारधारा रॉबर्ट वाड्रा तय करते हैं, दिल्ली में बीजेपी की विचारधारा विजय गोयल तय करते हैं, और इसलिए आम आदमी पार्टी की विचारधारा आम आदमी तय करता है। इसलिए हम लोगों को आम आदमी पार्टी तय करना है। साथियों, आप सब लोगों को याद है 2 साल पहले अन्ना हजारे दिल्ली में रामलीला मैदान में आके बैठे थे। हम सब लोग रामलीला मैदान गए थे। अन्ना जी क्या मांग रहे थे? अन्ना जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून पास करो कि अब अगर इस देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसको नौकरी से निकाला जाना चाहिए। ऐसा जन लोकपाल बिल पास करो। 13 दिन तक अन्ना जी अनशन पे बैठे रहे। हम सब लोग गए थे रामलीला मैदान, सारा देश गया था रामलीला मैदान, गए थे, सड़क पे उतरे थे। 13 दिन के अनशन के बाद सारी पार्टियों ने संसद में बैठ के अन्ना जी से प्रॉमिस किया था, आपको याद होगा। सारी पार्टियों ने कहा था अन्ना जी आप अपना अनशन खत्म कर दीजिए, हम लोग आपका लोकपाल बिल पास कर देंगे, आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं। प्रधानमंत्री जी ने अन्ना जी को चिट्ठी भी लिखी थी, आपको याद होगा। अन्ना जी को कहा था प्रधानमंत्री ने, अन्ना जी आप अपना अनशन खत्म कर दीजिए, हम आपकी तीनों शर्तें मान लेंगे। आज 2 साल हो गए, प्रधानमंत्री ने भी धोखा दिया और संसद में बैठी सारी पार्टियों ने धोखा दिया। अच्छा लोकपाल तो दूर की बात, एक कमजोर लोकपाल, लूला लंगड़ा लोकपाल बिल उन्होंने पास नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि सारी पार्टी डरते हैं, क्योंकि सारी पार्टी के नेताओं ने चोरी कर रखी है। बीजेपी वालों ने चोरी कर रखी है, कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, जयललिता ने चोरी कर रखी है, करुणानिधि ने चोरी कर रखी है। एक पार्टी आज इस देश के अंदर नहीं है जो इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सके, एक भी पार्टी नहीं है। इसलिए लोकपाल बिल पास नहीं कर रहे। आज अगर अन्ना वाला लोकपाल बिल पास कर दें तो आधे से ज्यादा नेता तिहाड़ जेल के अंदर होंगे, इसलिए ये लोग लोकपाल बिल पास नहीं कर रहे हैं। साथियों, लेकिन वो सपना अब हमारा पूरा होने जा रहा है।
नवंबर के महीने में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है और चुनाव जीतने के बाद 15 दिन के अंदर सबसे पहले दिल्ली में वही लोकपाल बिल पास किया जाएगा जिसके लिए अन्ना हजारे को 13 दिन का अनशन करना पड़ा था। अब आपका, देश का, उन सारे लोगों का वो सपना पूरा होने जा रहा है जिसके लिए हम सब लोग रामलीला मैदान गए थे साथियों। सबसे पहले दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और उसके बाद पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। अभी हम लोग अपने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं। मैं पूरी दिल्ली में घूमता हूं, कई लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, अरविंद जी आप तो ईमानदार हो, लेकिन ये जो 70 आदमी खड़े कर रहे हो इनकी क्या गारंटी है कि ये ईमानदार है? एक एक आदमी को हम चेकिंग कर रहे हैं, एक एक कैंडिडेट की हम इंक्वायरी करा रहे हैं और आज 3 चीजों की मैं यहां गारंटी देके जाता हूं। हमारे 70 के 70 कैंडिडेट ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं और किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी मुकदमा, अपराध का मुकदमा किसी कोर्ट के अंदर नहीं चल रहा है। आज कांग्रेस के 16 एमएलए विधानसभा में बैठे हैं जिनके ऊपर हत्या के, बलात्कार के और इस किस्म के अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। 9 बीजेपी के एमएलए ऐसे बैठे हुए हैं जिनके ऊपर हत्या के, बलात्कार के और इस किस्म के मुकदमे चल रहे हैं। अगर इस किस्म के बलात्कारी संसद के अंदर बैठेंगे और इस किस्म के लोग अगर विधानसभा में बैठेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली की लड़कियां सुरक्षित हो सकती हैं? क्या नहीं हो सकती हैं? अच्छे लोगों को अंदर भेजना पड़ेगा, ईमानदार लोगों को अंदर भेजना पड़ेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी चुन चुन के अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को टिकट दे रही है। लेकिन फिर भी हो सकता है हमसे गलती हो जाए, हो सकता है हमसे कुछ छूट जाए। तो आज मैं ये ऐलान कर रहा हूं यहां पे कि अगर हमारे किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का सबूत आप हमें चुनाव के 1 दिन पहले भी लाके दे देंगे, हम उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, सीट खाली छोड़ देंगे। गलत आदमी को अंदर नहीं जाने देंगे, हम लोग गलत आदमी को अंदर नहीं जाने देंगे। और यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस वाले बैठे हैं, मैं उनसे भी चाहता हूं वो भी ऐलान करें कि इस दिल्ली विधानसभा के चुनाव में वो किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे, किसी भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे और अगर भ्रष्टाचार का सबूत देते हैं हम लोग तो वो भी उनकी टिकट कैंसिल कर देंगे। साथियों, जब हमने पार्टी बनाई थी बहुत सारे लोग मुझे कहते थे दलदल है, कीचड़ है। अन्ना जी के साथ भी यही बहस हुई थी हम लोगों की। कई लोग मुझे कहते हैं आपने अन्ना को धोखा दिया, आपने अन्ना को धोखा दिया। मैंने अन्ना को धोखा नहीं दिया, बिल्कुल धोखा नहीं दिया। अन्ना जी के साथ यही बहस हुई थी हमारी। अन्ना जी को हमने कहा कि अन्ना जी इन 2 सालों में सब कुछ करके देख लिया, इन पार्टियों की मिन्नतें की, चिट्ठियां लिखी, मीटिंग्स की। 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया, 2 बार मैंने अनशन किया। अन्ना जी को हमने कहा कि अन्ना जी अब राजनीति में जाना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर जाके सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अन्ना जी ने कहा कि नहीं, कीचड़ है। हमने कहा अन्ना जी अगर कीचड़ है तो अब कीचड़ के अंदर घुस के सफाई करनी पड़ेगी। अन्ना जी ने कहा कि गंदे हो जाएंगे। हमने कहा अन्ना जी अगर गंदे भी हो जाएंगे तो यही मान लेना कि ये हमारी कुर्बानी है कि हमने अपनी इज्जत भी दांव के ऊपर लगा दी, लेकिन अब अंदर जाना पड़ेगा, कीचड़ के अंदर जाके सफाई करनी पड़ेगी। आज इन सब लोगों ने मिलके, एक टाइम ऐसा था इस देश के अंदर जब चाचा नेहरू ने राजनीति की थी, सरदार पटेल ने राजनीति की थी, लाल बहादुर शास्त्री ने राजनीति की थी। उन दिनों में कोई राजनीति करने जाता था तो कहते थे कि देश की सेवा करने जा रहा है, त्याग करने जा रहा है, बलिदान करने जा रहा है। आज इन सारे गुंडों ने मिलके ऐसा माहौल बना दिया है, इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि अब अगर कोई राजनीति में जाता है तो कहते हैं कि गुंडे, केवल गुंडे जाते हैं अंदर, 2 नंबर के पैसे के बिना राजनीति नहीं चल सकती है। साथियों, राजनीति बहुत पवित्र चीज है। राजनीति देश की सेवा का नाम है। आज जो ये लोग कर रहे हैं वो राजनीति नहीं है, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले दलाली कर रहे हैं। इसको राजनीति नहीं कहते, इसको दलाली कहते हैं। 2 अक्टूबर को लास्ट ईयर जब हम लोगों ने पार्टी ऐलान किया था तब हमने कहा था कि इनको राजनीति करनी नहीं आती, इनको राजनीति करनी हम लोग सिखाएंगे और उसके बाद से हम दिल्ली का एजेंडा तय करते हैं और ये बीजेपी और कांग्रेस वाले 10 दिन बाद उस एजेंडा को फॉलो करते हैं। मैं दिल्ली में अनशन पे बैठा। Arvind, can you wrap up in 2 minutes, please? Yeah, just 1 minute. मैं दिल्ली में अनशन पे बैठा, 15 दिन का अनशन किया था मैंने, 15 दिन भूखे रहा था। उसके बाद हमने ऐलान किया कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली में बिजली के दाम 50% तय करेंगे। उसके 10 दिन बाद विजय गोयल जी कहते हैं हम 30% कम करेंगे। तो मेरी एक पत्रकार से बात हो रही थी, उसने मजाक में बोला, कहता जी मैंने विजय गोयल जी से जाके पूछा
कि वो केजरीवाल तो 50% कम कर रहा है, आप 30% कम कर रहे हो। विजय गोयल जी बोले 20% मेरा भी तो है। हमने ऑटो के ऊपर पोस्टर लगाने चालू किए, बीजेपी वालों ने भी ऑटो के ऊपर पोस्टर लगाने चालू किए। पहले विजय गोयल जी की स्माइलिंग पिक्चर आया करती थी, हमने क्रांतिकारी पिक्चर यूज करने की, उन्होंने भी अपनी मुट्ठी बंद करके पिक्चर करनी चालू। पिक्चर में भी फोटो खींचने में भी नकल मारते हैं, फोटो खींचने में भी नकल मारते हैं। इनको राजनीति करना हम लोग सिखाएंगे और इनकी दलाली बंद करेंगे, इनकी दलाली बंद करेंगे हम लोग। और मैं फिर से संजय कौल को कहना चाहता हूं, अच्छा आदमी है, 2006 तक दिल्ली के अंदर बड़े बड़े मूवमेंट किए थे इन्होंने, लेकिन जब से बीजेपी में गए गुमनाम हो गए, पता ही नहीं चला किसी को। संजय जी छोड़िए, क्या बेकार की पार्टी में, आप भ्रष्ट पार्टी में चले गए हैं, उस पार्टी को छोड़िए और आम आदमी पार्टी में। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, चलिए, ये इलेक्शन रैली नहीं है, हम वापस आते हैं। मैं एक एक सवाल मैं पूछूंगा, उसके बाद सबको मौका मिलेगा सवाल पूछने का। नेताजी आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए, ये बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं, बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन कुछ आपके पार्टी के सदस्य भी थे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आपने कहा कि एक कमेटी बनाएंगे, 3 हफ्ते के अंदर बस अगर भ्रष्ट पाए गए तो इन लोगों को पार्टी से निकाल देंगे। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस बीजेपी ऐसा करे। आपने कुछ जजेस को भी चुना, वो जज ही भाग गए, वो कहते नहीं हम नहीं करेंगे। तो ये जो आप बातें करते हैं वो किस एक्सटेंट तक इंप्लीमेंट होती हैं? आप सिस्टम के बाहर है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो आरोप आपको भी याद होगा लगे थे आपकी पार्टी, बिल्कुल लगे थे सर, उनकी जांच हो चुकी है और उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है। और हम तो चैलेंज कर रहे हैं, सरकार तो हमारी नहीं है, सरकार तो बीजेपी कांग्रेस वालों की है। सारी इंक्वायरी करा ले, सब इंक्वायरी करा चुके हैं। हमारे खिलाफ इनकम टैक्स छोड़ दिया इन्होंने, होम मिनिस्ट्री छोड़ दी इन्होंने, आईबी वाले हमारे पीछे पड़े रहते हैं, मेरे फोन टैप होते हैं, ईमेल टैप होते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिला इन लोगों को। अब भी करवा ले, कुछ नहीं मिला। वो बेबुनियाद आरोप थे, हमें भी कुछ नहीं मिला, सरकार को भी कुछ नहीं मिला। मैं आपको बता दूं, ये बार बार कहते रहे फॉरेन फंडेड। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली पुलिस ने एफिडेविट फाइल किया है, मनीष सिसोदिया क्या होम मिनिस्ट्री ने रेड मारी और उसके अंदर कुछ नहीं मिला इन लोगों को। और होम मिनिस्ट्री ने एफिडेविट फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि इनका पैसा बिल्कुल प्योर है, कोई बाहर से फंड नहीं आ रहा है। हमने अब तक मुद्दों की बात की, कुछ व्यक्तियों की भी बात करते हैं, और खासतौर से राहुल गांधी की अगर बात की जाए, दीपेंद्र, मनमोहन, एक जो हमने फिगर देखा था स्क्रीन पे, 86% एक अथॉरिटेरियन प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इस वजह से भी कि लोगों को लग रहा है कि मनमोहन सिंह जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए उस तरह के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, इसी वजह से इस तरह की यूथ सर्वे में निकल के आ रहा है। राहुल गांधी को लेकर इमेज बनी हुई कि बहुत कंफ्यूज है। अगर आप चाहते हैं कि ये यंग ऑडियंस राहुल के लिए वोट डाले, कांग्रेस के लिए वोट डाले, आपको नहीं लगता कि उनमें कुछ भूख तड़प होनी चाहिए? चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए, लगता है कि उनमें कोई भूख तड़प नहीं है, कोई एक डिजायर, जैसे अरविंद में जीतने की एक भूख है, बाकी लोगों में जीतने की, कुछ करने की भूख है। राहुल लगता है कि थोड़ा इजी चलते हैं, वो भूख नजर क्यों नहीं आती आपके लीडर में? देखिए, हर व्यक्ति, जवाब देने दो। हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हर कोई एक साथ नहीं हो सकता। और पिछले 7-8 वर्ष में मेरे को बहुत नजदीकी से राहुल जी के साथ काम करने का अवसर मिला, और मैं ये कह सकता हूं कि जो उनकी जो कमिटमेंट है, जो आइडियोलॉजी के प्रति, जो विचारधारा के प्रति कमिटमेंट है, चाहे वो कमिटमेंट जितने कमिटेड हैं, मैंने बहुत कम लोगों को उतना कमिटेड देखा है। और उस कमिटमेंट के साथ वो उस अपने विचार को अंत तक पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से लेके चलते हैं। आप राइट टू फूड लीजिए, मिडिल क्लास में ये एक हवा बनाया गया कि सही नहीं है, इससे नुकसान हो जाएगा। वही मिडिल क्लास जो हर रोज
अपने मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाते वक्त 50 गुना ज्यादा सब्सिडी लेती है गरीब आदमी से जिसके पास मोटरसाइकिल और कार नहीं है। उस मिडिल क्लास में कहा गया कि भाई अगर गरीब आदमी के पास थोड़ी सब्सिडी चली जाएगी राइट टू फूड में, अगर गरीब आदमी आज के दिन देश में 1 रुपया सब्सिडी ले रहा है, मिडिल क्लास 50 रुपए ले रही है। हम आज अपने घर से आने के लिए हमने उनसे ज्यादा सब्सिडी ली है इस देश की बजट में। राहुल जी की वो जो विचारधारा थी, बहुत सी ताकतों ने उसका विरोध किया। राइट टू फूड की बात हो, मनरेगा की बात हो, एक सवाल किसानों की बात हो, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। मगर जो मैं समझता हूं उनका जो सबसे बड़ा, मैंने जो देखा है करीब से, जो उनका सबसे बड़ा एक स्ट्रेंथ है उनकी पर्सनालिटी में, कि वो कमिटेड है एक विचारधारा के प्रति कि ये देश सबका है, सबके लिए बराबर है, गरीब आदमी का हमें सबको साथ लेके चलना है। और उस विचारधारा को आगे लेके जाने के लिए वो जब लगते हैं तो जब तक अंततः नहीं नतीजा निकलता, निष्कर्ष नहीं निकलता, चाहे आरटीआई की बात हो। आज केजरीवाल जी बैठे हैं, मगर कैसे उसको एड्रेस किया जाए जो इन्होंने मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का, आरटीआई जब लागू की, चाहे उसकी बात, तो ये मैं समझता हूं इस विचारधारा। तो मुझे ये बताइए दीपेंद्र कि ऐसा क्या लॉजिक है कि जब भी सरकार में कोई घोटाला हो जाता है, कोयला घोटाला हुआ, 2G, वो सारा मनमोहन सिंह की गलती हो जाती है। जब भी कोई स्कीम आ जाती है, राइट फॉर फूड हुआ, लैंड एक्विजिशन बिल हुआ, वो सारा ये राहुल गांधी लेके आया। राहुल गांधी, ये क्या बात? देखिए ये जो ट्विस्ट है ये आप दे रहे हो, आपने दिया। नहीं, ट्विस्ट आप दे रहे हो। आपने कहा राइट टू इन्फॉर्मेशन भी राहुल लाया, लैंड एक्विजिशन बिल भी राहुल लाया, फूड सिक्योरिटी बिल भी लाया, लेकिन कोलगेट से उसका कोई लेना नहीं। देखिए ये एक साझा नेतृत्व है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो केवल राहुल जी लाए या उसमें मनमोहन सिंह जी का कोई हिस्सेदारी, भागीदारी, योगदान नहीं था। एक साझा नेतृत्व है। हर जो अच्छा काम है, जो हमारा कोई भी अचीवमेंट है, उसका क्रेडिट भी हम सब एक साथ लेंगे। और अगर कहीं कोई कमी रही है तो वो भी हम सब उस कमी के लिए हम समझते हैं कि हम सब उसमें साथ हैं। तो ये जो बात आप कह रहे हो, ये आप कह रहे हो, ये हम नहीं कह रहे। जनता कभी ये बात नहीं क्या करना, जनता पे छोड़ते हैं फैसला। संजय, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी, मतलब इस तरीके से इस वक्त भारत में देखा जाए तो एक बारात है, वोटर्स की बारात है, खूब सारे वोटर्स हैं, 2 बारातें आ रही हैं। एक तरफ एक दूल्हा है जो कि घोड़े पे बैठने को तैयार नहीं है और पूरे बाराती उसको धकेल के घोड़े पे बैठा रहे हैं, वो बैठने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ एक दूसरी बारात है, वो आपकी बारात है, जिसमें सब लोग जो दूल्हा है उसको रोक रहे हैं, नहीं मैं चढ़ूंगा घोड़े पे, मैं चढ़ूंगा घोड़े पे, और सब रोक रहे हैं और दूल्हा जाके मंडप पे बैठ रहा है। तो ऐसे में मेरा सवाल यह है कि जब नरेंद्र मोदी की बात होती है, एक ऐसा आदमी जो कि अपनी पार्टी को अब तक पूरी तरीके से यूनाइट नहीं कर पाया, आडवाणी जी नाखुश हैं, जो अपनी मनमर्जी करने का आदी है, वो भारत जैसा देश जिसमें आपको अलग अलग पार्टियों को, अलग अलग विचारधाराओं को लेकर चलना होगा, आप क्यों ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा शख्स इस देश को चला पाएगा? क्योंकि गुजरात और भारत में बहुत फर्क है। अब सवाल इतना लंबा था तो जवाब भी उसी प्रोपोर्शन में दिया जाएगा। जब तक वो ड्रम नहीं बजता आप बोलिए। देखिए, पहले ये लोग इतना डरते हैं मेरे जवाब से। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि पहले तो आपके जो स्पेसिफिक सवाल था वो गलत था, क्योंकि अगर ये सवाल आप मुझसे आज 15 दिन पहले करते तो वाजिब रहता, जब आप कहते कि यूनिफिकेशन नहीं, यूनाइटेड नहीं है, लोग खींच रहे हैं, ऊपर नहीं चढ़ने दे रहे हैं। लेकिन जब एक पार्टी के मध्य से कुछ तय हो गया, एक सेकंड, कुछ तय होकर निकला है तो यू विल हैव टू रेस्पेक्ट दैट। आपकी कंपनी में कौन किसको सीईओ बनाता है, हम उस पर टिप्पणी थोड़े कर सकते हैं, बनने के बाद थोड़े कर सकते हैं। ये तो गलत बात है। तो एक तो ये, दूसरी बात, इस बात को मत भूलिए कि ये पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तानी इलेक्टोरल कल्चर में एक प्राइमरी स्टाइल, जो जितनी गुंजाइश थी, इलेक्शन हुआ, जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे पार्टी के, उन सबका मत था कि एक ही आदमी है जिसको हम पीएम देखना चाहते हैं, और एक ही आदमी जिसको वो पीएम देखना चाहते थे वो घोषित हुआ। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि पहली बार आपके सामने डेमोक्रेसी का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। जब ये यूएस में होता है तो अब तालियां बनाते हैं कि साल भर के लिए प्राइमरी चलते हैं, देखिए उनका किस तरह से विस्तार से उनका एक कैंडिडेट डिस्कस होता है, डिसाइड होता है। हमारे यहां भी यही हुआ। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वोटर और पार्टी का सदस्य इतना भिन्न नहीं होता है, वो एक दूसरे से इतने अलग नहीं होते हैं।
हम भी वोटर हैं, हम भी सिटीजन हैं, हम पार्टी के सदस्य भी हैं। आप में से कई लोग पार्टी के सदस्य नहीं हैं, वोटर हैं लेकिन सिटीजन भी हैं। और हम सब का मन एक ही तरफ दौड़ता है। आप क्या चाहते हैं और मैं क्या चाहता हूं, उसमें अंतर क्या हो सकता है? आप भी वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूं, इस देश का भला हो, यह देश किसी दिशा में तो चले, एक डिसाइसिव लीडरशिप हो, कोई हो तो सही जो खड़े होकर बोले मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मा लेता हूं, कहे तो सही कि जो मैं कहता हूं वो मैं करके दिखाऊंगा, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। कोई ऑनेस्टी तो हो लीडरशिप में, कोई इंटेग्रिटी तो हो, पीछे से कोई धागे तो ना खींच रहा हो, उसको प्रॉम्प्ट तो ना करता, उसके स्पीच कोई और तो ना लिखता हो, अरे इतना तो हो। और अगर ऐसा हो तो राहुल जी आपको बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आप भी सिटीजन हैं, आप भी इस देश से वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूं। हर वोटर शहर का हो, गांव का हो, सब कहते हैं यार जीवन तो सुखद बनाओ। हम पॉलिटिक्स में आपसे उम्मीद क्या करते हैं? आप हमारे वोट लीजिए, आप हमारा टैक्स लीजिए, अरे हमारा जीवन तो सुखी कर दो। पर दीपेंद्र ये बताइए, क्या आपने वो आंकड़े देखे कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से बहुत आगे है रेस में? आपके पास ये मौका है बताने का लोगों को, आपके हिसाब से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से बेहतर क्यों है? देखिए, एक तो बहुत आगे नहीं है, आपने जो आंकड़े दिखाए उनके हिसाब से भी बहुत आगे नहीं। 47-33, 14%। और मैं समझता हूं कि जो आपने दूसरा आंकड़ा दिखाया कि जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, मैं समझता हूं वो ज्यादा समझदार होती हैं। और नहीं, मगर देखो, मैं समझता हूं जो भिन्नता है वो विचारधारा में, हम कैसे देश को आगे लेके जाएं, सबको साथ लेके जाएं कि नहीं। हम नहीं मानते कि हम देश में किसी को छोड़ के देश को आगे लेके जा सकते हैं, ये हमारी विचारधारा है। हम इस विचारधारा के अनुसार लोगों में जाने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि कोई पीछे ना रहे, चाहे वो कोई धर्म का हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से पीछे हो, हम सबको साथ लेके जाना चाहते। हम चाहते विकास हो, मगर और तेज गति से विकास हो, ये भी विचारधारा की बात है, मगर विकास का फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हम इंडिया शाइनिंग नहीं चाहते, हम दिल्ली या गुड़गांव में इंडिया शाइनिंग केवल नहीं चाहते, मगर हम भारत निर्माण दिल्ली और गुड़गांव के साथ रोहतक और झज्जर में भी चाहते हैं। हमारी ये विचारधारा, और हम इसी विचारधारा को हम आगे लेके जाए। 2 बार 2004 और 2009 में डिसाइसिव लोगों ने इस विचारधारा के पक्ष में हमारा साथ दिया। आज देश में मैं समझता हूं ऐसा एक देश के सामने एक सवाल है कि एक ऐसा नेतृत्व उभर के आ रहा है हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी के माध्यम से, जिसने देश में, जिसके वजह से देश के अंदर लोगों में बिखराव की स्थिति पैदा हो रही है, जिसकी वजह से एनडीए के खुद के पार्टनर, पिछले 20 साल के पार्टनर नीतीश कुमार जी का, मैं उस समय मुझे याद है, मैं पार्लियामेंट देखने गया था जब बाबरी मस्जिद के बाद डिस्कशन हुआ था, उस समय भी नीतीश कुमार उनके साथ बैठे हुए थे, मगर इस समय उनके आते ही उन्होंने कहा कि भाई ये देश में आएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और देश क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्योंकि अगर हम अलग अलग हो गए, आपस में लड़ने लगे तो देश नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो ये विचारधारा, मैं समझता हूं ये जो कमिटमेंट है राहुल जी की इस विचारधारा के प्रति, और इस बात के लिए कि भाई सब साथ चले, गरीब और अमीर दोनों साथ चले। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि गुजरात के अंदर ये इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मगर मजदूर की दिहाड़ी, मनरेगा की जो मजदूर की दिहाड़ी जो प्रदेश सरकार तय करती है पूरे देश में, वो गुजरात के अंदर कम है। हम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट भी हो, मगर हम चाहते हैं मजदूर की दिहाड़ी भी ज्यादा हो। क्या कारण है कि सबसे कम मजदूर की दिहाड़ी गुजरात के अंदर? मैं समझता हूं कि ये विचारधारा हमारी, और इसके लिए राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने बोला तो बहुत, लेकिन मेरा जो सवाल था उसका जवाब नहीं दिया। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, आप दोबारा राहुल कि मेरा सवाल था कि राहुल मोदी से बेहतर क्यों, ये देश की जनता को समझाइए। लेकिन चलिए कुछ सवाल नहीं, आप सवाल दोबारा पूछ लीजिए, मैं दोबारा जवाब दे देता हूँ। फिर बाकी बोलेंगे कि आपने, मैं दोबारा जवाब दे देता हूँ। चलिए, लेट्स टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। ओके, द जेंटलमैन राइट इन द फ्रंट ओवर हियर, गो ऑन। मेरा सवाल, आवाज आ रही है? हेलो, मेरा सवाल हुड्डा जी से है। नमस्कार सर, मेरा एक दोस्त है, बहुत खास दोस्त है, रोहतक में मॉडल टाउन में रहता है, और वो काफी तारीफें करता है कि आपने क्या डेवलपमेंट की है, क्या काम किए हैं। पर सर कभी कभार ऐसा लगता है कि एक तरीके का हमारे आपकी सरकार में एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आ गई है कि बाप के बाद बेटा गद्दी संभालेगा। ये आपके साथ हुआ है, पहले चौटाला जी गया है, फिर चौधरी, अब आप और आपके पिताश्री।
तो सर मेरे को लगता है कि एक नेपोटिज्म बनता जा रहा है ओके यू आस्क पॉलिटिकल सिस्टम में। इसका जवाब आप दीजिए जल्दी ताकि जल्द। और मौका दें। ये- आप लोग ये तब तक बिल्कुल मन बनाएंगे वाजिब- कि किसको वोट डालेंगे। बहुत अच्छा सवाल है भाई, बड़ा सही प्रश्न है। मैं समझता हूं कि ये बात सही है। आज जो हमारा सिस्टम है देश में, राजनीति का जो सिस्टम है प्रजातंत्र का, उसमें एक एडवांटेज है और अनफेयर एडवांटेज है। मैं खुद मानता हूं इस बात को। अगर आप पॉलिटिकल फैमिली से आते हो तो आपके पास निश्चित तौर से एक एडवांटेज है कि आपको मौका मिल जाता है। मुझे याद है जब मैं पहला चुनाव लड़ा था, उस समय मैं प्रोफेशनल था, मैंने इंजीनियरिंग करी, इन्फोसिस में काम किया, मैकिन्सी में काम किया, उसके बाद मैं राजनीति में आ गया। मेरी कोई क्वालिफिकेशन इससे ज्यादा नहीं थी कि मैं एक परिवार से संबंधित था। बहुत से लोगों ने मेरे जितनी क्वालिफिकेशन होगी, बहुत से लोगों का हो सकता है मेरे से बेहतर भी हो, मैं मानता हूं। उसके बाद मैंने प्रयास किया, जब फर्स्ट टर्म थी मैं तब तकरीबन 2.5 लाख वोटों से जीता, 2.25 लाख वोटों से जीता था। बड़े मार्जिन के साथ लोगों ने केवल इसलिए जिताया कि मैं अपने दादा का पोता हूं, अपने पिता का बेटा हूं। उसके बाद मैंने 3.5 साल दिन रात काम किया और मैं अगली बार जब चुनाव में गया मैंने लोगों से कहा कि अगर मैंने सही मायने में काम किया है तो मुझे चाहे पिछली बार से 1 वोट से ज्यादा से जिताओ, अगर मैंने अपने बल पे काम किया है। क्योंकि पिछली बार आपने मुझे बिना देखे परखे जिता दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरी बार जब मैं जीता तो मैं 5.25 लाख वोटों से जीता, तो देश में सबसे ज्यादा मार्जिन था रोहतक से। और उस बात का मुझे गर्व है कि मैं उस सवाल को लेकर लोगों के बीच में गया। तो ये बात सही है आपकी, मगर हम सब आपकी बात सही है, मगर हम सब यहाँ बैठे हैं तो अपनी डेमोक्रेसी की वजह से बैठे। हमें एंट्री का पॉइंट बहुत आसान है और ये सिस्टम हमें बदलना है, मगर मैं उस सिस्टम का प्रोडक्ट हूं, मैं उसको बदलाव को देखना चाहता हूं। मगर उसके बाद आगे बढ़ने के लिए मैं समझता हूं कि हमारी परफॉर्मेंस मैटर करती है। अगर हमने और सवाल लिया आप लोगों का खाना मिस हो जाएगा। अगर आप लोग खाना मिस करने को तैयार हो तो कुछ सवाल ले सकते हैं, या लंच ब्रेक छोटी करने को तैयार। पक्का? बाद में ये तो नहीं बोलोगे कि इंडिया टुडे ने खाना नहीं खिलाया? पक्का? चलो ठीक है, मैं लेता हूं। आराम से तसल्ली रखो। विल टेक अ क्वेश्चन दैट, चलो आप पूछो। द ऑरेंज टी शर्ट। ओके, विल जस्ट रिलैक्स, हैंग ऑन, आराम से जितने लोगों को मौका मिले हम देते हैं चांस। आप पूछिए सवाल पूछिए। हेलो, छोटा सवाल छोटा जवाब। सर मैं दीपेंद्र सर से पूछना चाहूंगा। सर आपने कहा कि हमने बहुत तरक्की की है, मुझे तो सिर्फ ये पता है 1940 में 3 रुपए का $1 होता था, 63 रुपए का है। दूसरी बात ये, आप बोलते हैं कि हमको, आपने जो भी बातें कही सर, मुझे 2 साल पहले तक कंसर्न नहीं था, अब कंसर्न है क्योंकि मेरी जेब से पैसा जा रहा है, मैं इनकम टैक्स देता हूं, मुझे लगता है कि वो गटर में जा रहा है। घोटाले होते हैं, घोटाले रोकने की तो बात दूर है, आप घोटाले की फाइल नहीं संभाल पाते हैं, बोलते हैं फाइल गुम गई, आप देश क्या संभालेंगे। दूसरी बात, संजय कौल साहब पे आते हैं। आपने सर बीजेपी की बात की, आप लोग अल्टरनेट, एक सवाल पूछे ना सर बस 1 मिनट। सर आप अल्टरनेट देने की बात करते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पे सारे लोग एक हो जाते हैं, क्यों सारी पार्टीज राइट टू इन्फॉर्मेशन में नहीं आती? आप लोग अपना खर्चा देने में क्यों हिचकिचाते हैं? दूसरी बात, क्रिमिनल्स को पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए। सर बस 1 मिनट। सर क्रिमिनल्स को पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए, आप लोग क्यों उस पर सहमत नहीं है? आप लोग उसका जवाब क्यों नहीं देते? सारे लोग उस पर एक ही हो जाते हैं। और सर मोदी जी का सवाल, अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो ये माना जाएगा कि मोदी जी भी इस पर सहमत है कि सारे क्रिमिनल्स को पार्लियामेंट में जाना चाहिए। प्लीज इसका जवाब दीजिए। Sanjay, do you want to answer whether Modi supports that criminals should go to parliament? जो आपके बाकी नेताओं की राय है, क्या मोदी जी की भी वही राय है? नहीं, बाकी नेताओं की ऐसी कोई राय नहीं है, आप assumptions बहुत ज्यादा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे मालूम नहीं है सवाल क्या था, वो इतने सारी बातें हो गई, सवाल मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हमारी तरफ। उन्होंने चलिए दीपेंद्र जी से पूछा कि आपकी पार्टी तो फाइल ही नहीं संभाल पा रही, देश क्या संभालेगी? वो फाइल गुम हो गई कोलगेट वाली, कि सरकार के अंदर से फाइल कैसे गुम हो गई? राहुल ये सवाल उन्होंने नहीं पूछा, आपने। मुझे लगता है कि ये जो है आप मुझे लगता है ये सवाल पूछना। मैंने नहीं पूछा, उसने पूछा। नहीं, मगर तो उसने पूछा, कहाँ है वो? पूछा ना आपने फाइल का सवाल। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा ठीक। आप वो फिर से आगे आपसे पूछने के लिए। भाई मेरे साथ आप लोग, मैं भी मजाक कर सकता हूँ। हाँ जरूर। जहां तक देश के आगे बढ़ने का सवाल है
कि हम देश आगे बढ़े कि नहीं, डॉलर का आप जो है प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं कि देश आगे बढ़ नहीं बढ़े, ये हम आप खुद सोचें, क्योंकि आई थिंक विद ऑल ग्रेविटी एंड सीरियसनेस वी नीड टू कंसिडर दिस. इफ वी रियली फील we have not progressed in these 66 years, after looking at all, I don't want to repeat some of those things. I think you would be arriving at a wrong conclusion. I think it was the vision of our founding fathers that we are having this debate in this hall today. It was the vision of Pandit ji, Sardar Patel, Ambedkar ji, that we are having this debate today. Why can't we have? No, it's our constitution. So I mean, I think why can't we have the debate in our rest of the places? खत्म करते हैं. खत्म कर. बहुत हो गया, लंच के लिए टाइम नहीं मिलेगा. चलिए, हमने कहा था शुरू में, नहीं अब खत्म करते हैं, खत्म करते हैं बस. अच्छा सुनिए, हमने कहा था शुरू में कि हम लोग एक वोट, अभी हाथ सब अब नीचे कीजिए वरना काउंटिंग में मुश्किल हो जाएगी. हमने कहा कि आपने 3 विचारधाराओं के बारे में सुना. यू हर्ड फ्रॉम द कांग्रेस, यू हर्ड फ्रॉम द बीजेपी एंड यू हर्ड फ्रॉम द आम आदमी पार्टी. I'd like you all to just settle down. Only then will we be able to do this in a meaningful way. बैठ जाइए, बैठ जाइए. जैसे मीरा कुमार बोलती है ना पार्लियामेंट, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए. वैसे आप लोग बैठिए. और फिर अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप में से, जैसे वो पार्लियामेंट में होता है ना, द आईज हैव इट, द नोज हैव इट, वैसे करके आपको बताना है कि आप कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को या बीजेपी किसको वोट देंगे. ठीक है? तो मैं पूछूं, ये नहीं कि बाहर में बोल दिया, वो नहीं चलेगा, आपको एक के लिए बोलना है. ठीक है? तो मैं पूछूंगा आपसे सबसे पहले कांग्रेस के बारे में. जितने लोग बोलेंगे उसको फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि बीजेपी के लिए ज्यादा है कि आम आदमी पार्टी के लिए. आपको एक ही के लिए वोट देना है. ठीक है? आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट. क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे? नहीं. अगर आप लोग बोलेंगे तो लगेगा कि आप दे रहे हैं ना. अब हाँ और ना तो ऑडियंस जब सब साथ में बोलते हैं वो कंफ्यूज हो जाता है. आपको अगर नहीं देना, नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं, आपको कुछ नहीं बोलना है. अगर आप नहीं दे, अगर हाँ एक ही आवाज करनी है, वरना वो काउंटिंग करने वाले भूख कंफ्यूज हो जाएंगे. नहीं, कोई पीछे नहीं आएगा. क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे? ओके ओके, वन. क्या आप लोग बीजेपी को वोट देंगे? क्या आप लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पे बैठने वाले लोग नहीं तय करेंगे कि अगली सरकार किसकी होगी, लेकिन इस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के आधार पे अगर आप लोग गए वोट डालने के लिए, तो इस सेशन में ये निकल के आया कि शायद आम आदमी पार्टी को आप में से ज्यादातर लोगों के वोट मिलेंगे. But a democracy is a contest of ideas. In India, it's a boisterous, noisy contest of ideas. And I really want to thank Deepinder Singh Hooda for having come here. So many years of anti-incumbency is difficult to defend and justify. Despite that, coming here, putting forth his perspective and speaking to all of you. Thank you very much, Deepinder. Thanks also to Sanjay. Although Arvind Kejriwal tried to poach Sanjay in the middle of the session, that didn't work out. Sanjay stuck to his grounds. Sanjay Kaul, thank you very much. और आप कहते हैं अरविंद कि आप बाकियों से भिन्न हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग, मैच फिक्सिंग आप बीच में कोशिश जरूर कर रहे थे. आप आए, वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू ऑल वेरी मच. थैंक यू ऑल वेरी मच. Thanks very much, Rahul, and all our guests. And we certainly hope